Now, Max 2B. I think in Max previously, LAQs of circles completed. Now, I am going to start parabola LAQs. LAQs in parabola. So, in 2B, most easy and most important LAQs are from circles. And then after circles, two LAQs will come. Then after circle, parabolas. One LAQ will come in parabola. Parabola LAQs. One LAQ will come from parabola. So first important, I will go in important voice questions. So first most important question in parabola is derive y square is equal to 4x. So derivation, it's very simple and easy. So y square is equal to 4x derivation. So in this, what I am going to do to derive this parabola, first what I am going to do, general diagram of a parabola, you know, right? So parabola का axis रहता और parabola ऐसा shape का रहता, parabola का vertex रहता, parabola का directrix रहता. So this all in all this, first what I am going to do, I am going to fix the vertex of the parabola at origin. So first thing what we are doing, let us assume let vertex be. Vertex I am taking it as A, which is nothing but I am fixing this vertex as 0, 0. So first take the parabola. You draw this diagram in middle and incomplete. So this is shape of the parabola. First I am fixing the vertex here at origin 0, 0. Okay. So if this is the vertex 0, 0, so obviously this axis will be which axis? This will be x-axis, and tangent at this vertex. This will be what? This will be a y-axis. Okay. So equation of x-axis will be y equals to 0. Equation of y-axis will be x is equal to 0. So first I fix the vertex at origin. So then after this, from the definition of parabola, what we know, AS distance, A to S distance, S is a focus and Z is the foot of the directrix here. So we know from the definition of parabola, AS distance and AZ distance are equal. So I am assuming AS and AZ distance as small a. So this distance I am assuming it as small a. A to S distance is small a to Z distance is small a. So then after this, what can you say about the points S and Z? S point will be what? So S will be what? What will be the point of S? So ये vertex 0, 0 origin है. यहाँ से यहाँ distance कितना है? Small a. So what could be the coordinates of S? S के coordinates क्या होते हैं? Any point on x-axis, y 0 रहता ना? Y तो 0 रहता. X पे कितना move हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? A. So coordinate of S will be a, 0. So then we can write S coordinates as a, 0 and Z coordinate, foot of the directrix. Z is here is the foot of the directrix. Z coordinate will be, we are moving negative side now. So its coordinate will be minus a, 0. Okay. So then after this, here, this is the directrix side. This is the axis of the parabola. So this is axis. So this is the axis of the parabola. This is the tangent at vertex, and this line is directrix now. So I am going to find directrix equation. So directrix equation, how you will get? How to find directrix equation? This is a line parallel to y-axis now. Any line parallel to y-axis will be in which form? Any line parallel to y-axis will be y opposite x is equal to it will be. So equation of y-axis is x is equal to 0. Equation of a line here passing through S, its equation will be s is equal to a, x is equal to a. Equation of this line will be x is equal to minus a. So equation of directrix is x is equal to minus a. How means see here? S के coordinates क्या है? A, 0 है. Z के coordinates क्या है? Minus a, 0 ना. So I said before, any line parallel to y-axis in which form? Y opposite, x is equal to it will be. So take any point on this line if it's x coordinate and equal is x coordinate. So x is equal to what? Minus a. So line of y tangent at vertex, y-axis का equation क्या है? X is equal to 0. अगर perpendicular line S से pass करी तो इसका equation क्या है? X is equal to a. तो इसका equation क्या होता? X is equal to minus a. So we need equation of directrix. So after this, again same assume let P x comma y or x1 comma y1. You can take anything. Prefer x comma y only. Let x comma y be a point on parabola. So consider this point on a parabola.
parabola shortcut I am drawing parabola LA. So consider any point on parabola. I am taking this point as P x comma y, be a point on parabola. Now from the definition of parabola, S to P distance and P to A distance, it will be what? Equal now. So consider any point on parabola. I am taking point here P x comma y. From the definition of parabola, SP distance and PM distance. PM distance is perpendicular distance from point to directrix. So it will be equal now. So take the definition of parabola. So here write from definition of parabola. So what is the definition of parabola? SP distance is equal to PM distance. SP is equal to PM. What is SP distance? Distance between 2 points. What is the distance between 2 point formula? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So under root x minus a whole square plus y minus 0 whole square. So in distance formula, root will come now. To remove that root, what I am doing? Squaring on both sides. SP square is equal to PM square. Do squaring on both sides. So here root will be cancelled. So SP distance will be what? X minus a whole square plus y minus 0 whole square. Okay, root will be cancelled because square is there. I am not writing distance root. Okay, again, what is PM distance? PM distance is perpendicular distance from point P to line L. So what will be the perpendicular distance formula? Line क्या है आपको? X is equal to minus a ना, तो इसको x plus a is equal to 0 लिख सकते हैं. So what is the perpendicular distance formula from point to line? Actually formula क्या है बोले तो, suppose एक line है, ax plus by plus c is equal to 0 line है, और p एक point है समझो, p x कामा या x1 कामा y1 एक point है. तो ये पॉइंट से लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? मॉड. सिंपली क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो मॉड ऑफ लाइन लिख दो, ax प्लस by प्लस c. x की जगह पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना x1, y की जगह पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना y1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस, सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला, सिंपली मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ. देखो सिंपली मॉड ऑफ द लाइन लिख दो. मॉड ऑफ द लाइन लिख के x की जगह x1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट करके बाय अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट होल स्क्वायर. So instead of using this formula, simply write, simple shortcut trick I am saying, simply mod of the line. You take mod of this line. You just simply take mod of this line. Mod of the line x plus a. So what it will be? Mod of x plus a by x के place में point x is substitute करना है ना, by under root of x coefficient is how much? 1 square. Y coefficient, here y is not there now, so y coefficient will be 0 square, and complete whole square is there. So this is whole square. This one step is crucial here, finding the distance between S and P and perpendicular distance from point to line. Simply मैं बताया distance between 2 points, तो you know x minus a whole square plus y minus 0 whole square, root चले गया square है बोल के. तो PM distance क्या आता? Perpendicular distance from point to line. Simply mod of the line. You take mod of the line here. Mod of the line you take. So mod of line x plus a. In place of x, substitute x here, and by under root of x coefficient square plus y coefficient square. So now solve it. X minus a whole square is how much? X square plus a square minus 2ax. Correct है? A square plus b square minus 2ab formula. Plus y minus 0 is how much? Y square is equal to, now mod is there, whole square is there. Mod of whole square, it will be plus only. Mod will be removed. X plus a whole square by under root of 1 square is 1. Root का 1 square 1 is होता. So expand this again. X square plus a square. X square plus a square minus 2ax plus y square is equal to x plus a whole square. What is the expansion? X square plus a square plus 2ax. Okay, so same value is equal to के इधर उधर cancel हो जाता, plus x square cancel, plus a square cancel. So minus 2ax remains now. Minus 2ax, if we transpose to RHS, what it will be? So y square is equal to 2ax as it is, minus 2x. If it goes to this side, plus 2x. So 2ax plus 2ax, how much? 4ax. So finally, y square is equal to 2ax plus 2ax, how much? 4ax. This is the derivation of parabola. Y square is equal to 4x. See here, this derivation is simple, compact. Please draw diagram neatly, clearly, and no need to write all those English sentences here.
Just here everything is mentioned, everything is given in max language. No need of writing words, English sentences. Please, this is the compact, easy, short, and complete derivation. So now next LAQ. Second LAQ in parabola. LAQ is prove that the area of triangle formed by points mentioned here, x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 on the parabola. This is parabola shortcut, y square is equal to 4x. So we have to prove area of triangle formed by points on this parabola is 1 by 8a into modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1. So this LAQ also I will make it simple. So easiest way में मैं आपको समझाता हूँ कैसा derive करते. So first thing, क्वेश्चन क्या दिया देखो, डायग्राम जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम उतार के बता रहा हूँ. सपोज कौन सा भी पैराबोला ले लो, 3 पॉइंट्स है, x1 कामा y1 बोल के एक पॉइंट है, x2 कामा y2 और एक पॉइंट है, x3 कामा y3 और एक पॉइंट है. सो ये तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा तो ट्रायंगल फॉर्म होता ना. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज दिस, ये प्रूफ करना है. सो व्हाट आई विल डू हियर, फर्स्ट I will assume these points x1, y1, x2, y2, x3, y3 as parametric points on parabola. तो फर्स्ट assume x1 पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है पैराबोला में, 80 स्क्वायर कामा 280 है ना. तो x1 y1 है तो फर्स्ट वाला पॉइंट बोल के ऐसा ले लो. सेकंड वाला पैरामेट्रिक पॉइंट, एक्चुअली पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर कामा 280. तो सेकंड वाला पॉइंट है बोल के t2 बोल के सब्सक्रिप्ट लिखो. पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला क्या है, 80 स्क्वायर कामा 280. तीसरा वाला पॉइंट है बोल के t3 बोल के लिखो. सो ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स अज्यूम करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, फॉर एनी पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, 1/2 into mod x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. तो इसमें x1 की जगह 8t1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, y1 की जगह 281 सब्स्टिट्यूट करो, x2 की जगह 8t2 स्क्वायर 282, 8t3 स्क्वायर 283. देन आफ्टर दिस सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको फाइनली एरिया फाइंड करना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले की क्लास में हम करे कैसे भी 1a में r2 माइनस r1 r3 माइनस r1 बोल के एक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन करे ना, सेम वही प्रॉपर्टी यहीं पे यूज कर रहे. सो नो नीड ऑफ राइटिंग दिस डायग्राम, जस्ट आप समझ लो कि मैं कैसा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूं. एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पहले पॉइंट्स अज्यूम कर लेता हूं मैं सेंटेंसेस में, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं. नो नीड ऑफ दिस ड्राइंग दिस डायग्राम. ओके, so under proof, first let us assume those points. Let x1 comma y1, I am assuming this as parametric point, 8t1 square comma 281. Okay, next x2 comma y2, I am assuming this point as second parametric point, 8t2 square comma 282. Okay, next assume this point x3 comma y3 as third parametric point, 8t3 square comma 283. Next, what is the area of triangle formula? So I am writing in next page because it will be area of triangle proof करना है. तो what is the area of triangle formed by those points? Formula क्या है, 1/2 into mod x1 y1 1
So area of triangle formula 1/2 into modulus of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Okay. So in place of x1 what will you write? क्या लिए थे पैरामेट्रिक पॉइंट? x1 y1 क्या लिए थे? 8t1 स्क्वायर कॉमा 281. तो सब्स्टिट्यूट कर लो 8t1 स्क्वायर 281 1. x2 क्या होता? 8t2 स्क्वायर 282 1. एंड x3 y3 क्या है? 8t3 square 283 1. So here in from determinant property, same here determinant property, from first column I can take a common, right? एक कॉलम में से एक एलिमेंट कॉमन ले सकते, या सेकेंड कॉलम में से 2a एक बाहर ले सकते कॉमन. सो फ्रॉम द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट कॉलम a कॉमन लिए तो a होता, फिर सेकेंड कॉलम में से 2a कॉमन ले सकते ना, 2a कॉमन लिए तो रिमेनिंग क्या है? t1 स्क्वायर t1 1 here, t2 square t2 1 and t3 square t3 1. So in this 2 cancel, a into a is how much? A square. So here again modulus of t1 square t1 1, t2 square t2 1, t3 square t3 1. So here what I am going to do, same like previously we did in previous class, I am doing row transformation, determinant property. R2 I am changing, R2 changes to R2 minus R1, I am changing R3 as R3 minus R1. So I am doing two row transformations here. R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 changes to R3 minus R1. So first row as it is, so this is equal to a square into determinant of first row, no changes, t1 square t1 1. In second row R2 minus R1 now, so t2 square minus t1 square will be t2 minus t1 1 minus 1. So do minus R2 minus R1, so t2 square minus t1 square. Here t2 minus t1, so t2 minus t1. Again 1 minus 1 is how much? 0. So in the same way here R3 minus R1 now, this minus this, so t3 square minus t1 square, t3 square minus t1 square. Again here also t3 minus t1, t3 minus t1. Again 1 minus 1 is how much? 0. So find determinant of this. So here also same like that 4 marks question here we did before. A square minus b square can be written as a plus b into a minus b. So here also t2 square minus t1 square can be written as t2 plus t1 into t2 minus t1. Change it. So this equals a square into determinant of t1 square t1 1. So t2 square minus t1 square can be written as t2 minus t1 into t2 plus t1. A minus b into a plus b formula. Okay. ये वाला एलिमेंट एज इट इज है t2 minus t1. Next last में 0 as it is है. Next here also t3 square minus t1 square. This can be written as a plus b into a minus b. t3 minus t1 into t3 plus t1. Okay. यहाँ पे क्या है? t3 minus t1 finally 0. Okay. So what can we do? If you observe here, this t2 minus t1, this t2 minus t1, can we take common? If we 0 है बोले तो 0 into t2 minus t1 ही होता ना. तो ये second row में से मैं t2 minus t1 common ले रहा हूँ बाहर. So what it will be? This is equal to a square into t2 minus t1 common ले लिया. In the same way third row में से what we can take common? Check in third row, t3 minus t1, दो जगह सेम है ना. यहाँ पे भी 0 into t3 minus t1 0 जो होता ना, तो t3 minus t1 थर्ड रो में से कॉमन ले लो. तो बचता क्या? t3 minus t1 कॉमन ले लो थर्ड रो में से. तो रिमेनिंग क्या है? फर्स्ट वाला एज इट इज लिखो t1 स्क्वायर t1 1. सेकेंड रो में क्या बचे हुआ है? t2 plus t1. यहाँ पे 1 बचता ना, पूरा कॉमन ले लिया तो 0 का 0. यहाँ पे t3 plus t1 बचा, t3 minus t1 कॉमन लिए तो 1 बचता यहाँ पे, एंड फाइनली 0. तो सेम लाइक प्रीवियसली डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी बताया मैं, whenever
we have two zeros in any column or row. So what will you do? Exclude this and this. Just find determinant of 1 into this matrix. ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो बस. तो दो जीरो सारे ऐसा बोले तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट पेज में आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज. एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है. आंसर क्या है? ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 इंटू T3 माइनस T1. तो आंसर क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 इंटू T3 माइनस T1. ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 इंटू T3 माइनस T1. इसका डिटर्मिनेंट करना है ना. तो T2 प्लस T1 इंटू 1 क्या होता? T2 प्लस T1 होता ना. तो यहाँ पे लिख दो 1 इंटू T2 प्लस T1 क्या होता? दिस इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे ना. सो 1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू 1 क्या होता? T2 प्लस T1. तो यहाँ पे वही लिख रहा हूँ देखो, T2 प्लस T1. फिर माइनस है, माइनस शुरू से लेके लास्ट तक रहता. तो नेक्स्ट दिस इंटू दिस हो गया माइनस 1 इंटू T3 प्लस T1 T3 प्लस T1. तो राइट हियर T3 प्लस T1 T3 प्लस T1. ओके, ब्रैकेट क्लोज. So since it's an area can't be negative, so that's why put a mod here. Area can't be negative, so that's why put a mod. So this becomes what? This is equal to a square into modulus of T2 minus T1 into T3 minus T1 into 1 into anything, same thing now. So T2 plus T1 minus into karo minus T3 minus T1. Okay, plus T1 minus T1 cancel. So finally mod hai. So what it will be? This is equal to a square into modulus of T2 minus T1 into T3 minus T1 into T2 minus T3. तो हमारे को फॉर्मेट कैसा है ना, देखो y1 minus y2 y2 minus y3 y3 minus y1 ना 1 2 2 3 3 1 फॉर्म में आना है. तो यहाँ 1 2 नहीं है 2 1 बोल के है यहाँ पे. इसको क्या करता हूँ मैं, ऐसा इंटरचेंज कर देता हूँ. 2 1 जाके 1 2 करे तो माइनस आता ना. तो माइनस है बिकॉज इट्स ए मॉड, it will be neglected, right? mod है पॉजिटिव हो जाता, करेक्ट है. तो इसको a square is equal to, can I make T2 minus T1 as T1 minus T2? T2 minus T1 को T1 minus T2 करे तो माइनस आता ना. तो मॉडुलस ऑफ माइनस प्लस हो जाता. सो 1 2 2 3 यहाँ पे है T2 minus T3 और 3 1 यहाँ पे T3 minus T1. Got it? So put a mod. Okay, next. फाइनली रिप्लेस T1 T2 T3 इन टर्म्स ऑफ y1 y2 y3. कैसा लिख सकते हैं बोले तो, आप पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कर रहे थे ना, a T1 स्क्वायर कामा 2a T1, ये पैरामेट्रिक पॉइंट 1 है बोल के, यानी कि इसको x1 कामा y1 एज्यूम कर रहे थे. यहाँ पे ऑब्जर्व करो. सो व्हाट इज दिस y1? ये y1 क्या है? 2a T1 है ना. तो y1 2a T1 है, तो T1 सब्जेक्ट बनाए तो 2a इंटू कर रहा ना, इधर गए तो क्या करता? डिवाइड करता. तो y1 की वैल्यू क्या आ रही? 2a T1. तो साइड में लिख दो. सिंस 2a T1 वैल्यू क्या है? 2a T1 इज इक्वल टू y1 है. तो यहाँ से T1 सब्जेक्ट बने तो क्या आता? y1 by 2a. सेम T2 की वैल्यू क्या आती? y2 by 2a. T3 वैल्यू क्या आती? y3 by 2a. तो सब्स्टिट्यूट कर लो पूरे. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ T1 इज y1 by 2a एंड T2 इज y2 by 2a. ओके, इंटू T2 इज y2 by 2a minus T3 is y3 by 2a into T3 is y3 by 2a minus T1 is y1 by 2a. So observe in denominator, ये वाले टर्म में डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आता? 2a आता. ये वाले टर्म में और एक 2a है. ये तीसरे वाले टर्म में भी डिनोमिनेटर में क्या आता? 2a आता. तो पूरे जगह से कॉमन डिनोमिनेटर 2a 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 ले लेंगे. So this equals to a square into modulus of y1 minus y2 by 2a into y2 minus y3 by 2a into y3 minus y1 by 2a. ओके, सो 2a कितने हैं? 3 है ना. पूरों को बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दो पूरे 2a को. तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है फाइनली? a स्क्वायर बाई 3 2a है ना. 2a इंटू 2a इंटू 2a, तीनों को बाहर ले लिया. रिमेनिंग बचे हुआ क्या है? y1 minus y2 into y2 minus y3
into y3 y2 minus y3 into y3 minus y1। तो डिटर्मिनेंट क्लोज कर दो। सो दो ए कैंसल, फाइनली आंसर क्या है 1/2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू ए इंटू डिटर्मिनेंट मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। so this is the proof we have। so इसमें मेन थिंग जो अज्यूम करना है, ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है बोले तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स है। 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282 83 स्क्वायर 283। इसके बाद क्या करना है, a कॉमन लिए 2a कॉमन लिए, उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन करे, r2 माइनस r1 करे, r3 माइनस r1 करे। रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज हुआ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कन्वर्ट करके ये a माइनस बी वाला जो पार्ट है ना t2 माइनस t1, तो इसमें से कॉमन लिए, t3 माइनस t1 कॉमन लिए, उसके बाद 0 0 बचता ना, तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम एक्सक्लूड कर देके खाली 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, करके इंटू कर लो बिकॉज इट्स एन एरिया। फिर क्या करते हैं, मॉड अप्लाई करते, सॉल्व करने के बाद 1 2 2 3 3 1 फॉर्म में आना। फाइनली t1 को y1/2a, t2 को y2/2a और t3 को y3/ta ले लेके कॉमन ले लो, फाइनली आपको आंसर आता। ओके सेम सिमिलर और एक क्वेश्चन है 1/16 है बोल के, एक बार प्रॉब्लम देख लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम करेंगे, सेम सिमिलर है 1/8 है बोल के, 1/16 है का और एक प्रॉब्लम है, सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे भी, बट ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो यहाँ पे पॉइंट्स 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282 83 स्क्वायर 283 लेना, वहां पे दूसरे लेना रहता है। देखो पॉइंट्स वहां पे a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2 a t2 t3 कामा a ऑफ t2 प्लस t3 ऐसा लेना था। ओके नेक्स्ट थर्ड एल क्यू। So in parabola, third LAQ here, क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, सिमिलर है। देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय tangents at x1 comma y1 x2 comma y2 and x3 comma y3 tangents at this point to the parabola y square is equal to 4ax। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है, 1/16a इंटू मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। सेम प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट वहां पे इससे पहले प्रॉब्लम में एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स x1 y1 ऑन द पैराबोला बोल का था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय
tangents at those point फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं डायग्राम उतारा, सपोज पैराबोला है, इससे पहले क्या था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट्स क्या थे, पैराबोला पे थे। बट यहाँ पे x1 कामा y1 पे अगर मैं एक टैंजेंट उतारा ऐसा, ओके, इन द सेम वे x2 कामा y2 पे और एक टैंजेंट उतारा ये पॉइंट पे, तो ये दोनों टैंजेंट जो है ये पॉइंट पे मीट होते ना। इन द सेम वे तीसरा वाला पॉइंट ले लो, x3 कामा y3 पे और एक टैंजेंट उतारा मैं ऐसा, तो 3 टैंजेंट्स बने ना। तो 3 टैंजेंट्स के बीच में जो एरिया है, ये एरिया ये है बोल के प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यू कैन, यहाँ पे भी सेम डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, लेट टैंजेंट्स एट x1 y1, ये टैंजेंट, एंड टैंजेंट एट x2 y2, ये दोनों कहाँ पे मीट होते हैं बोल के आपको ये जस्ट एज ए पॉइंट याद रहना, a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2 बोल के ये पॉइंट याद रहना आपको बस। ये दोनों टैंजेंट्स, टैंजेंट 1 टैंजेंट एट पॉइंट 1 टैंजेंट एट पॉइंट 2, दे मीट एट a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2, ये वाला आप लिखना रहता, आपको याद रहना रहता। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, सॉरी, टैंजेंट एट x1 y1 टैंजेंट एट x2 y2 मीट एट a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2। सिमिलरली टैंजेंट 1 और टैंजेंट 3 कहाँ पे मीट होते, 1 and 3 ना, तो 1 and 3 लिखो बस। टैंजेंट 2 और टैंजेंट 3 ये दोनों कहाँ पे मीट होते बोले तो 2 3 बोल के लिखो करेस्पॉन्डिंगली, a t2 t3 कामा a ऑफ t2 प्लस t3। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो पॉइंट्स याद रखना है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। So under proof, first thing, let point of intersection of tangents, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे you have to remember this point of intersection of tangents at x1 कामा y1। अगर सपोज x1 कामा y1 पैरामेट्रिक पॉइंट at1 स्क्वायर कामा 2at1 है, तो सेकेंड वाला पॉइंट x2 कामा y2, इसको मैं क्या अज्यूम कर ले रहा हूँ, पैरामेट्रिक पॉइंट at2 स्क्वायर कामा 2at2। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला पॉइंट क्या है, x3 कामा y3, इसको मैं पैरामेट्रिक पॉइंट क्या अज्यूम कर ले रहा हूँ, at3 स्क्वायर कामा 2at3। ओके, सो अगर सपोज इफ आई हैव ड्रॉन टैंजेंट्स एट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो ये 3 टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता बोले तो रिमेंबर दिस a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2। ओके, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो। नेक्स्ट a t2 कामा 1 2 2 3 3 1, ये फॉर्मेट में लिखो, a ऑफ t2 प्लस t3, 1 2 1 2 2 3, नेक्स्ट लास्ट वन इज 3 1, a t3 3 1 कामा a of t3 plus t1। So you have to remember just this term. If you remember this, then this problem is also same like previous problem only. Here before we have formed the area of triangle using at1 square 2at1, these points, parametric points. Now we are finding area using these 3 points. These 3 points find what area? So that area equals to 1 by 16. So please remember these points. These are the only points. These points are nothing but point of intersection of tangents. अगर x1 y1 पे tangent 1 उतारा, x2 y2 पे tangent 2 उतारा, x3 y3 पे tangent 3 उतारा, तो तीनों के tangents के point of intersection क्या आते बोले तो ये है फर्स्ट वाला point of intersection, सेकंड वाला, थर्ड वाला। ये एक याद रख लिए तो सेकंड एंड थर्ड लिख ले सकते हैं। देखो 1 2 की जगह 2 3, 2 3 की जगह 3 1, ऐसे फॉर्मेट में याद रख लो। अब मेरे को ये पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्म होता प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दोस पॉइंट ऑफ टैंजेंट्स। तो डेल्टा फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू मॉड x1 y1 1 ना, x1 क्या है a t1 t2, x2 क्या है a ऑफ t1 प्लस t2, x1 y1 1, ओके, x1 y1 1, x2 y2 1। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 1 2 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 3 1, ऐसा लिख दो बस, a of t2 plus t3 1, a of t3 plus t1 1। So find area, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट थिंग क्या कर रहे थे इससे पहले भी,
ये कॉलम 1 में से ए कॉमन लो, कॉलम 2 में से भी ए कॉमन लो। तो सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, 1/2 इंटू फर्स्ट कॉलम में से ए बाहर ले लो, सेकेंड कॉलम में से और एक ए बाहर ले लो, रिमेनिंग क्या है, T1 T2, T1 प्लस T2 1, T2 T3, T2 प्लस T3 1, नेक्स्ट T3 T1, T3 प्लस T1 1. Okay, now A into A is how much, A square by 2 into, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना, तो सेम लाइक प्रीवियसली रो ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले क्या करे थे, R2 माइनस R1 करे थे, तो यहाँ पे भी R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, डू टू रो ट्रांसफॉर्मेशन, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1. So these do these two row transformations. So this equals to A into A is how much, A square by 2 into modulus of, so first row is as it is, no need to change anything, T1 T2, T1 plus T2, T1 plus T2 1. In second row changes how much, T2 minus T1 now, so this you change minus, so T2 T3 minus T1 T2 now, so this minus this you are doing, right, T2 R2 minus R1 you are doing, right. So in this, can I take T2 directly common? If I take T2 directly common, so can I write directly as T3 minus T1? I am taking T2 common, it becomes what, T3 minus T1. Here also T2 plus T3 minus R1 now, so minus will come to both terms, minus T1 minus T2. Next 1 minus 1, how much, 0. Same do R3 minus R1 also, R3 minus R1, do like this, R3 minus R1. Okay, so in R3 minus R1, so can I take T1 as common, same term है ना, तो दोनों टर्म में से माइनस करने के पहले T1 कॉमन लिए, तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, T3 है, माइनस यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, T2 है. सेम डू R2 R3 माइनस R1 ऑल्सो, तो R3 क्या है, T3 प्लस T1 माइनस R1, तो माइनस दोनों को भी आता ना, ये माइनस T1 माइनस T2. फाइनली 1 माइनस 1 हाउ मच, 0. सो यहाँ पे प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो गया, और प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गए, तो बच्चे से क्या है, T3 माइनस T1 है, T3 माइनस T1 है, यहाँ पे क्या है, T3 माइनस T2 है, T3 माइनस T2 है. सेम लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, कॉमन ले सकते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन रहा लो, इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ या मॉडुलस ऑफ T1 T2 T1 प्लस T2 1, यहाँ पे T2 इंटू T3 माइनस T1, और यहाँ पे क्या है, T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 0. नीचे लास्ट टर्म, लास्ट रो में क्या है, T1 इंटू T3 माइनस T2 इंटू T3 minus T2 0. So in second row, what I can take common, T1 minus T1, can I take common from second row, same like previously. So A square by 2 into second row में से T3 minus T1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 0 बोले तो 0 into T3 minus T1 ही होता ना, तो यहाँ से मैं T3 minus T1 कॉमन ले लूँ, T3 minus T1 कॉमन ले, फिर इसमें से क्या कॉमन लेते, T3 minus T2, T3 minus T2, T3 minus T2 common लो. 0 means 0 into T3 minus T2 now. So take that also common. So this becomes T3 minus T2. So determinant of remaining क्या है लिख दो, T1 T2, T1 plus T2 1. Here T2 is remaining, ये common ले लिए ना, यहाँ पे क्या 1 बचा, यहाँ पे 0 का 0 है, यहाँ क्या बचे हुआ है, T1 is remaining, here 1 and here 0. So in determinant, if two elements are 0 in a row or column, just exclude this. Simply find determinant of 1 into this matrix. 1 into this matrix determinant. So it will become what? A square by 2 into T3 minus T1 into T3 minus T2 into 1 into this now. So 1 into karo T2 into 1 T2 minus T1 into 1 T1. So that's all. So because it's an area can't be negative. So that's why put a mod here. So after this, what it will be?
1 2 2 3 3 1 फॉर्म में आना है ना। तो यहाँ पे 1 2 नहीं है, 2 T2 माइनस T1 बोलकर है। इसको अगर मैं ऐसा इंटरचेंज कर दिया तो माइनस आता ना, तो माइनस से मॉडुलस से तो माइनस जाके प्लस हो जाता। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज इक्वल टू a² by 2 इंटू आई एम रिप्लेसिंग T2 माइनस T1 एज T1 माइनस T2। I can replace because minus आ रहा ना, minus बाहर आता because it's a mod, so mod means minus will be mod of negative value plus ही हो जाता। तो 1 2 2 3 यहाँ पे भी है ना, तो T3 माइनस T2 है, मैं इसको चेंज करके T2 माइनस T3 करूँ, अगर ऐसा चेंज करे तो माइनस आता बिकॉज इट्स ए मॉड, माइनस जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। नेक्स्ट लास्ट में T3 माइनस T1, एक ऑर्डर सीक्वेंस में लिखो 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। इसके बाद क्या करना, T1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, y1/2 है, T2 के प्लेस में y2/2 है, T3 के प्लेस में y3/2 है। सो सब्स्टिट्यूट कर लो। फाइनली आंसर क्या आया था हमारे को, डेल्टा इज इक्वल टू a² by 2 इंटू T1 माइनस T2, 1 2 2 3 T1 ना, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1। सो व्हाट इज T1 हियर, वी गॉट T1 क्या है, T1 y1/2a माइनस y2/2a, ओके, इंटू T2 क्या है y2/2a, T3 इज y3/2a। सेम प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे ना, तो 2a T1 वैल्यू क्या थी, y1 थी, तो T1 सब्जेक्ट बने तो क्या आता है यहाँ पे y1/2a, तो वही रिप्लेस करूँ। T2 क्या होता बोले तो y2/2a, T3 क्या होता बोले तो y3/2a माइनस y1/2a, ओके। सो पूरा में देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे बाई डिनोमिनेटर में 2a एलसीएम ले सकते, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 2a एलसीएम ले सकते, यहाँ पे डिनोमिनेटर में और एक 2a एलसीएम ले सकते। तो पूरों में से कितने 2a है कॉमन ले ले रहा हूँ बाहर, हाउ मेनी 2a's आर देयर, 3 2a है ना, 2a इंटू 2a इंटू 2a कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या है y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1, ओके। सो 2a कैंसल एंड 2a कैंसल, सो फाइनली आंसर क्या है 1/2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16a इंटू मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों सेकंड वाला LAQ थर्ड वाला LAQ दोनों सिमिलर है, देखो थोड़े बहुत चेंजेस है, वो चेंजेस कहाँ है बोले तो यहीं पे याद रख लो आप। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेते ना, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ लिए थे, फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल में x1 y1 की जगह क्या लिए थे, 8t1² 2a1, 8t2² 2a1, 8t3² 2a1, 1/8a के प्रॉब्लम में ये लेना है देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में, और 1/16a के प्रॉब्लम में क्या लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2। सेम 1 1 1 2 2 3 3 1 चेंज कर लेते जाओ। इसमें क्या लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में a t1 t2 कामा a ऑफ t1 प्लस t2। जस्ट इतना डिफरेंस याद कर लो बस, दोनों में प्रोसीजर सेम है, वे ऑफ सॉल्विंग सेम है, आंसर भी सेम आता, बस खाली 1/16 है तो वहां पे 1/8 है बोल कर। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो कि मुझे इजीएस्ट वे में मैं सॉल्व करे से हूँ, पूरे LAQ1 LAQ2 LAQ3 पूरे स्क्रीनशॉट्स ले लो या लिख लो आपके नोट्स में। शॉर्ट वे में कॉम्पैक्ट इजी वे में बताए सो देखो, ये सेकेंड LAQ हुआ 1/8 है। नेक्स्ट थर्ड LAQ यहाँ से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रख लो थर्ड LAQ में। इससे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 डायरेक्ट पैरामेट्रिक्स पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करे थे। अब पैरामेट्रिक पॉइंट्स पे नहीं करना है, वो पॉइंट्स पे अगर टैंजेंट उतारे तो वो टैंजेंट जो पॉइंट्स पे मीट होते ना वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो वो टैंजेंट्स कौन से पॉइंट पे मीट होते ये आपको याद रहना कंपल्सरीली, तभी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट एक याद कर लिए तो 2 3 लिख सकते हैं, देखो 1 2 की जगह 2 3 3 1 कर लेना है बस। प्रोसीजर सेम है इसमें भी, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी।
नाउ नेक्स्ट फोर्थ LAQ. नेक्स्ट ये टाइप के LAQs भी सिमिलर एक टाइप के है. क्वेश्चन क्या आता है देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x-axis and which passes through points A -2, 1, B 1, 2 and C -1, 3. So equation of parabola find करना है whose axis is parallel to x-axis and which is passing through these 3 points. So procedure इसमें क्या है देखो, any parabola, you should know this point, any parabola whose axis is parallel to x-axis. So equation of any parabola whose axis is parallel to x-axis is in which form? हमेशा याद रख लो, equation of parabola whose axis is parallel to x-axis. So it will be in the form x is equal to parallel to x-axis बोले तो x is equal to बोल के आता है देखो ly square plus my plus n. Equation of parabola whose axis is parallel to x-axis will be in this form. Always remember. In the same way दूसरा क्वेश्चन चेंज होके भी आता जिसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल के आता क्वेश्चन. अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया बोले तो y इज इक्वल टू बोल के लिखना देखो lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n. ओके, इक्वेशन ऑफ एनी पैराबोला whose axis is parallel to y axis बोले तो इक्वेशन ये है जनरल इक्वेशन. द सेम वे इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis बोले तो जनरल इक्वेशन ये है. तो इसमें क्या करना है आपको, तीन अननोन है ना, तीन अननोन फाइंड करना है. फाइंड कर सकते कैसा बोले तो सेम लाइक सर्किल में जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करे थे, कैसा करे थे, उन्हें पॉइंट देता ना, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो एक कंडीशन आती, दूसरा वाला पॉइंट करो और एक कंडीशन आती, तीसरा वाला सब्स्टिट्यूट करो पॉइंट और एक कंडीशन आती. इन तीनों को सॉल्व करके GFC ला लिए थे ना. यहाँ पे भी सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है. अगर वो LAQ वहां पे कर सक रहे बोले तो ये भी LAQ आपके लिए इजी है, प्रोवाइडेड ये याद रहना बस इतना. वहां पे GFC अननोन थे सर्किल में, यहाँ पे LMN अननोन्स रहते, तो LMN फाइंड कर लो, दैट्स ऑल. सेम प्रोसीजर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स, तो सब्स्टिट्यूट कर लेके आप. ओके, इसको स्टार ले लो या इक्वेशन स्टार बोल के ले लो. फर्स्ट, सिंस दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट A -2, 1 से पास हो रहा ना, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. x के प्लेस में -2, y के प्लेस में 1 लिखो, x के प्लेस में -2, y के प्लेस में 1 प्लस m इंटू 1 प्लस n. तो क्या हो रहा आंसर इसका, -2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, तो l प्लस m प्लस n हो रहा. इसको इक्वेशन 1 ले लो. ओके, द सेम वे दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट B से पास हो रहा ना, A से B से पास हो रहा बोले तो B पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो. B पॉइंट क्या है, 1, 2, सब्स्टिट्यूट इन दिस. तो x के प्लेस में 1, x के प्लेस में 1, y के प्लेस में 2, तो l इंटू 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस n. तो इसको सॉल्व करो, क्या हो रहा, तो 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4l प्लस 2m, 4l प्लस 2m प्लस n. तो इसको इक्वेशन 2 ले लो. ओके, इन द सेम वे क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट C. C पॉइंट क्या है, व्हाट इज C पॉइंट गिवन इन क्वेश्चन, -1, 3. तो पैराबोला -1, 3 से पास हो रहा, सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, x के प्लेस में -1, y के प्लेस में 3. तो -1 इज इक्वल टू l इंटू x के प्लेस में, सॉरी y के प्लेस में 3 और x के प्लेस में -1. तो इसका आंसर क्या आ रहा, -1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9l प्लस 3m प्लस n. इसको इक्वेशन 3 ले लो. तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस है ना, 1, 2 एंड 3. 3 अननोन से कैसे भी 3 इक्वेशंस रहना पड़ता, 3 कंडीशंस है ना, तो तीनों को सॉल्व करके LMN ला लेना है. कैसा सॉल्व करते हैं देखो, फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, 1 एंड 2 को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एलिमिनेट कर दूं, n कैंसिल हो जाता, LM में इक्वेशन आता.
तो 1 and 2 को सॉल्व करे तो LM में एक इक्वेशन आता। सेम 2 and 3 को सॉल्व करो, 2 and 3 को सॉल्व करे तो 2 and 3 में से भी NN कैंसिल हो जाता, तो कैंसिल होके LM में और एक इक्वेशन आता। फिर अगेन इन दोनों को सॉल्व कर लिए, L आ जाता, M आ जाता, L आ गया, M आ गया, ये तीन इक्वेशन में से कहीं एक सब्स्टिट्यूट कर लो, N आ जाता। ओके, so what I am doing, solving 1 and 2. So 1 and 2 solve करो, what is 1? L plus M plus N is equal to L plus M plus N is equal to -2. And what is 2 given? 2 we got 4L plus 2M plus N is equal to 1. तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट ऊपर का भी साइन चेंज कर सकते हैं आप, नीचे का भी साइन चेंज कर सकते हैं, बट एक स्टेप्स अगर नीचे का करे तो नेगेटिव आगे ठहर जाता साइन, तो फर्दर रीजन चेंज साइन ऑफ एबो, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, माइनस जाके प्लस। तो यू कैन डू चेंज द साइन ऑफ एबो और बिलो, यहाँ पे ऊपर का करे तो बेस्ट है। तो प्लस एन माइनस एन कैंसल, 4L माइनस एल कितना होता 3L, 2M माइनस एम कितना होता प्लस एम, इज इक्वल टू 1 + 2 हाउ मच 3, इसको इक्वेशन 4 ले लो। इन द सेम वे सॉल्विंग 2 and 3 सॉल्व करो, तो व्हाट इज 2, 4L plus 2M plus N is equal to 1, and what is 3, 9L plus 3M plus N is equal to how much -1। तो चेंज साइन N कैंसिल करने के लिए ऊपर का भी कर सकते हैं, नीचे का भी कर सकते हैं। ऊपर का साइन चेंज करो, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस। ऊपर का क्यों बोले तो बड़ा नंबर ये है ना, तो बिगर माइनस स्मॉलर करे तो प्लस आता, नीचे का करे तो माइनस आके ठहरता और एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता आपको। तो 9L - 4L कितना होता 5L, 3M - 2M plus M plus N - N कैंसिल इज इक्वल टू -1 -2। इसको इक्वेशन 5 ले लो। सो अगेन सॉल्व 4 and 5, 4 and 5 को सॉल्व कर लिए तो M आ जाता, तो सॉल्विंग 4 and 5 करो। तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्विंग 4 and 5, LM आ जाता, देखो यहाँ पे सॉल्विंग 4 and 5। सो व्हाट इज 4 हियर, 3L plus M is equal to 3, 4 is 3L plus M is equal to 3, and what is 5, 5 क्या आया आपको 5L plus M is equal to -2, 5L plus M is equal to -2। नाउ डायरेक्टली एक सॉल्व कैंसिल कर ले सकते ना, चेंज दिस साइन, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस M - L कैंसिल, 5L - 3L 2L होता, ओके, -2 - 3 -5, तो L की वैल्यू क्या आ रही -5/2। L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 3 में तो करो या 4 में, टू गेट M वैल्यू 3 में कर लो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट L इज इक्वल टू -5/2 इन 3, M आ जाता, देखो क्या है 3L plus M is equal to 3, तो 3 into -5/2 plus M is equal to 3, सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ रहा आंसर, तो 3 5 जा 15, -15/2 plus M is equal to 3, -15/2 इधर गया तो +15/2, तो 2 LCM ले लो, इसको सॉल्व कैसा करते हैं, टोटल LCM 2 आता, 2 3 जा 6, 6 + 15/2, तो हाउ मच वैल्यू M, 6 + 15 is 21/2। L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, फर्स्ट वाला इजी है ना, टू गेट N, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, L plus M plus N is equal to -2, L वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, M वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, N आ जाता, सब्स्टिट्यूट L, M इन 1 क्या है, L plus M plus N is equal to -2, L क्या है हाउ मच -5/2, M कितना है 21/2 प्लस N इज इक्वल टू -2, तो एलसीएम कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, -5 + 21 लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस N इज इक्वल टू -2, तो 21 में से 5 निकाले तो 16 ना, 16/2 प्लस N इज इक्वल टू -2, तो 2 1 जा 2 8 जा कैंसिल, फाइनली N की वैल्यू क्या आ रही -2, +8 इधर गया तो -8, तो N वैल्यू कितना है -10, तो LMN पूरे सब्स्टिट्यूट कर लो, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ly² + my + n है ना, LMN सब्स्टिट्यूट कर लो बस, x इज इक्वल टू L क्या है
-5/2 इंटू वाई स्क्वायर, m क्या है प्लस 21/2 इंटू m एंड n इज -10. (21/2 into y minus 10). This is the final equation. Screenshots ले लो इसके. और भी क्वेश्चन है सेम टाइप के, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको. सेम सॉल्व करने के लिए सेम मेथड से सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, 3-4 टाइप से प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.